Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 23 February 2021. Today we will revise few important topics of chapter number 10, that is communicable diseases. So take out your book, open page number 68. So the things which we will revise, that are communicable diseases, non-communicable diseases, what are microorganisms, Next important topic we will cover, that is how diseases spread. So these four important topics we will cover, that is first one is the communicable diseases, second is the non-communicable diseases, and what are microorganisms, and how diseases spread. So let's start with the first heading, that is communicable diseases. So student, what are communicable diseases? Communicable diseases are those diseases which are spread through a infected person to a healthy person. And how this is possible? This is possible, student, when we come in contact with a, how this is possible? This is possible when we come in contact with a infected person, then these diseases are transferred from the infected person to a healthy person. So these diseases transferred from a infected person to a healthy person if a healthy person come in contact of a infected persons. So these are known as communicable diseases. ओके, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में किसी को फीवर हुआ है, कफ या कोल्ड कुछ हुआ है, सो धीरे धीरे आप देखोगे फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी हो जाता है, बिकॉज हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं. ठीक है, अगर समवन इज सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ डिजीजेस तो हमें इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए.
ठीक है, आप फैमिली मेम्बर हो, सब संग रहते हो, एक दूसरे के आर्टिकल्स यूज कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, हम इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, और वो डिजीज, उसके जर्म्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाते हैं और हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस तरह एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ these communicable diseases, examples: influenza, measles, malaria, etc. So these are the example of these diseases. So communicable diseases are also known as infectious disease or transmissible diseases, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से जर्म्स जो होते हैं हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। सो communicable diseases are also known as, these are also known as infectious diseases, or you can say transmissible diseases. Transmissible diseases. Now the next is what are non-communicable diseases. ठीक है, next topic which will be covered, that is non-communicable diseases. Now non-communicable diseases. So what are non-communicable diseases? These diseases are not spread through a infected person to a healthy person. ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं बेटा? नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीजेस होती हैं जो जैसे वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं। ठीक है, दे आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन इज द डिजीजेस which do not spread from an infected person to a healthy person. Okay, so definition of non-communicable disease is the diseases which do not spread from
from an infected person to a healthy person. So now the question arises, which type of the diseases are these? अब क्वेश्चन ये राइज हुआ तो फिर ये कैसी डिजीज है जो स्प्रेड तो हो ही नहीं रही है इन्फेक्टेड पर्सन से. सो रीजन इज these diseases are caused due to the deficiency of nutrient in the body. जब हमने न्यूट्रेंट्स की बात की थी बेटा, the 5 important that nutrients are fat, carbohydrate, proteins, vitamins and minerals. So these are the nutrients and these nutrients are required by our body. ठीक है, आपको पता है ना, हम जो डे टू डे लाइफ में इतनी एक्टिविटीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम भी ह्यूमन बींग्स हैं. जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी एक मशीन है, तो वो भी फंक्शन कब करती है? जब उसमें पेट्रोल डलता है. Due to the burning of the fuel, that vehicle move. So our body is also like a machine. We also need energy. So from where we are getting this energy, student? We are getting this energy from the food which we are eating. And by eating different types of a food, we are getting these nutrients which are required by our body. That is fat, carbohydrates, proteins, vitamins and minerals. So if there is a deficiency of these nutrients in our diet, then the person will suffer with non-communicable diseases. So now we will write reason of non-communicable reason for non-communicable diseases. So now the answer is communicable ये नोट्स हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट. इस तरह पढ़ोगे तो एकदम चीजें बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगी. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोर्ड पे लिखते हैं, इस तरह नोट्स बना के पढ़ोगे तो चीजें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होती हैं. ठीक है, अब कम्युनिकेबल, अरे सॉरी, नॉन कम्युनिकेबल आइए. सो नॉन कम्युनिकेबल diseases caused by deficiency of some nutrients, in our body. ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करते हैं. जब मैंने आप लोग को चैप्टर पढ़ाया था ईटिंग राइट,
सो उस समय जितनी भी हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात की थी कि किसकी डेफिशिएंसी से द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विच टाइप ऑफ ए डिजीजेस, वो सारी की सारी डिजीजेस जो हमने उस समय आपको पढ़ाई थी वो सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस थी। ठीक है, जो चैप्टर 4 में ईटिंग राइट पढ़ाया था, जैसे विटामिन ए, इफ देयर इज ए लैक ऑफ विटामिन ए in your diet, then you will suffer with a disease known as night blindness. Vitamin B, lack of vitamin B in the body, you will suffer with the disease known as very. If there is a lack of vitamin C, then you suffer with the disease that is scurvy. Lack of vitamin D, you will suffer with the disease known as rickets. Okay, so lack of iodine mineral in our body, goiter. ठीक है, so these are the diseases which are caused in the body due to lack of nutrients. इसीलिए वहाँ पे उस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में बात की थी बैलेंस डाइट, क्योंकि विटामिन ए है, बी है, ये सब विटामिन्स और मिनरल्स ये आपके क्या है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब कोई जर्म्स और वायरस का अटैक होता है ना बेटा आपकी बॉडी पे, तो ये इम्यून सिस्टम जो है यही इनसे फाइट करता है। अगर आप हमारा इम्यून सिस्टम फाइट में जीत गया तो हम फिट और हेल्दी रहते हैं, और अगर नहीं हो पाया तो हम बीमार हो जाते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे या कुछ लोग बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत बीमार रहते हैं। उसका रीज़न है उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे देखो एनिमल्स हैं, इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैं, कहीं का भी पानी पी लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको। हम ऐसा ओपन में रखा पानी, सराउंडिंग्स का रिवर वाटर हम ड्रिंक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम तुरंत बीमार हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द रीज़न। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेज वहाँ उस चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाई थी, ईटिंग राइट हैबिट, वो सारी की सारी क्या थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज थी। क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का रीज़न क्या है? रीज़न इज दे आर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है। जब किसी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, और देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बैड हैबिट से भी होता है। जैसे कुछ लोग बहुत अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनका लीवर इफेक्टेड हो जाता है, तो ये बैड हैबिट में आया। मैनी पीपल स्मोकिंग करते हैं, तो मे बी दे विल सफ़र विद लंग कैंसर डिजीज़ आल्सो। सो ये बैड हैबिट्स हैं, ठीक है। तो उससे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लोग सफ़र करते हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस कार्ड्स। अभी हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज और अब कर लिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहले हमने इनके डिफरेंस अच्छे से समझ लिए। अब हम नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी विल स्टडी, और इसके रीज़न तो हमने पढ़ लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के रीज़न हमने पढ़ लिए। ये कैसे होती है? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, ठीक है। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे होती हैं स्प्रेड, क्या रीज़न है, अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस काज्ड। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस आर काज्ड बाई various kinds of germs,
अब जर्म्स का जब नाम आया है तो पहले जर्म्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जर्म्स, सो व्हाट आर दीज जर्म्स? दीज आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। चैप्टर 7 में मैंने आपको फूड चेन पढ़ाई थी, ठीक है। तो सराउंडिंग्स को क्लीन करने का जो काम करते हैं ना बेटा, ये आपके जर्म्स ही करते हैं। दे आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए इनको बहुत छोटे हैं। वी आर अनेबल टू सी देम विद आवर नेकेड आइज, हम अपनी आंखों से इनको देख नहीं सकते। ये सारी तरफ है सराउंडिंग्स में, ठीक है। एयर में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी हैं, everywhere they are present, but they are so small in size that we are unable to see them with our naked eyes. So बहुत स्मॉल होने के कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बहुत छोटे हैं, इसलिए इनका नाम हमने रख दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, इसलिए इनका नाम हमने रख दिया बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और देखो ये डिजीज फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं ये जर्म्स, तो इसके देखो इसके साथ साथ इनकी बहुत एडवांटेज भी है इन जर्म्स की, ठीक है। क्योंकि हम जितनी भी अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करेंगे, ये सारी डिजीजेज, इवन ये सारी डिजीजेस क्या है, जर्म्स हैं ये जो डिजीजेज स्प्रेड करते हैं। तो ये तो इनकी डिसएडवांटेज आप कह सकते हो कि इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इन जर्म्स की बहुत बड़ी एडवांटेज भी है, ठीक है। प्लांट्स भी डेड करते हैं, आपको पता है प्लांट्स को हम लोग लिविंग कैटेगरी में रखा है हमने, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम प्लांट्स को बोलते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स भी डेड हो जाते हैं, एनिमल्स भी डेड होते हैं। तो अब प्लांट्स और एनिमल जो डेड हो जाते हैं, तो ये जो इनकी डेड बॉडीज है, इनको ईट करने का काम कौन करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, इसीलिए इनको डीकम्पोजर्स भी बोला जाता है। डीकम्पोजर्स, जो प्लांट डेड हो जाते हैं, एनिमल्स डेड हो जाते हैं, तो ये डेड प्लांट्स पार्ट और एनिमल बॉडी पे ही सरवाइव करते हैं ये आपके जर्म्स, ठीक है। इसलिए इनको कैटेगरी दी गई है डीकम्पोजर्स की। सो देखो बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी है इनकी एनवायरनमेंट में। अगर ये डिकम्पोजर नहीं होते तो सारा लैंड तो प्लांट्स के डेड पार्ट से और एनिमल के डेड पार्ट से कवर हो जाता ना। तो ये बड़े हेल्पफुल भी हैं ये जर्म्स हमारे लिए, डिजीज स्प्रेड कर रहे हैं बट इसके साथ साथ बहुत हेल्पफुल भी हैं, क्योंकि ये आपकी सराउंडिंग्स को, आपकी इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम लोग जर्म्स बोलते हैं, कीटाणु, ठीक है। जब ये हमारे बॉडी में किसी ना किसी तरह एंटर कर जाते हैं तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोई ना कोई डिजीज से, ठीक है। तो ये आपके हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी में बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज आर काज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ जर्म्स। तो जर्म्स बता दिया क्या होते हैं, अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। डिजीज काजिंग जर्म्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, ये इतने स्मॉल है, ये हमारी सराउंडिंग्स में तभी तो हम लोग बहुत प्रिकॉशन लेते हैं। जब भी हम लोग खाना खाते हैं, वी वॉश आवर हैंड विद द सोप, when we use toilet or when we go to the washroom we always wash our hand, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, ए पर्सन इज लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड बाय जर्म्स व्हेन, अब देखो एक पर्सन जर्म्स से इन्फेक्टेड कैसे होता, व्हाट आर द रीजन? फर्स्ट इज the germs enter the body by direct physical contact with an infected person, ठीक है। जैसे मान लो घर में ही किसी को कफ कोल्ड हो गया, फीवर हो गया,
आप कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो, आपका भाई बीमार है या मम्मी पापा किसी को भी हो गया, आपको भी हो सकता है, तो आप इन्फेक्टेड हो तो आपके बॉडी से उसके बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, आप कस कस के खांस रहे हो, कफ है, स्पिटिंग कर रहे हो, थूक दे रहे हो, ठीक है, या तो स्नीच कर रहे हो, छींक रहे हो, तो जो आपके बॉडी से जो जर्म्स निकल रहे हैं वो एयर में कैरी हो रहे हैं। और जब एक हेल्दी पर्सन उस एयर को ब्रीथ करेगा तो बाई नोज वो जर्म्स उसके बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो एक तो ये मेथड है, दिस इज द वे। ठीक है, सेकंड है यूजिंग आर्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, यूजिंग, एक तो ये हो गया जर्म्स एंटर द बॉडी बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। सेकंड, यूजिंग आर्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, आपने वो उसके आपका भाई बहन है घर में तो हम लोग क्लोथ शेयर कर लेते हैं, घर में एक ही टॉवल है, सारे आफ्टर टेकिंग ए बाथ उसी को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या तो गलती से ये भी हो सकता है कि इफ द योर फैमिली मेंबर इज इन्फेक्टेड बाई सम डिजीज, अगर उसे कफ कोल्ड या फीवर है, आपने उसके संग खाना खा लिया, तो ऐसे भी जर्म्स आपके बॉडी में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही दिया है, थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। थ्रो इन्फेक्टेड फूड मीन्स जो पर्सन इन्फेक्टेड है अगर वो उस फूड को ईट कर रहा है, आप भी संग में उसी फूड को ईट कर लिए, तो इन दिस मैनर आल्सो द जर्म्स इंटर इनसाइड योर बॉडी विद द इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। फूड क्यों इन्फेक्टेड हो गया? क्योंकि उसको इन्फेक्टेड पर्सन ईट कर रहा है। ठीक है, फिर है थ्रो इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? अनवांटेड विजिटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेटा थ्रो इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज। ठीक है, अब ये जो है बेटा ये अनवांटेड विजिटर्स हैं। अनवांटेड विजिटर मीन्स है कि आप चाहते हो ये हाउस फ्लाइज और मॉस्किटो आपके घर में आए, नहीं आए, लेकिन फिर भी ये हमारे घर में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो कैसे स्प्रेड करते हैं जर्म्स को। हाउस फ्लाइज का क्या है, ये गंदगी में ही बैठती हैं। ठीक है, जो गार्बेज होगा, कूड़े के ढेर जहाँ पे होंगे, ह्यूमन फेसेस है, एनिमल फेसेस है, ह्यूमन एनिमल्स जो पॉटी करते हैं, तो ये गंदे में रहती हैं और ये गंदी प्लेसेस में ही अंडे देती हैं मक्खियाँ। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो गार्बेज है, कूड़ा, ये क्या होता है, वेजिटेबल पील्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स मर गए, तो ये सब जो गंदी जगह पे क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं। ठीक है, तो व्हेन दे सिट ऑन दीज डर्टी प्लेसेस, तो ये जर्म्स इनके बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, हाउस फ्लाइज। ठीक है, आफ्टर दैट इफ यू आर ईटिंग द फूड, अगर आप खाना खा रहे हो और बाई चांस हाउस फ्लाइज गलती से आपकी प्लेट के पास फूड पे बैठ गई, तो ये जर्म्स तो इतने छोटे होते हैं, आपको तो पता नहीं, बस वो बैठ जाएगी तो समझ लो उसके बॉडी से जो जर्म्स हैं वो किस में चले गए, आपके फूड में चले गए, और आपने वो जर्म वाला फूड खा लिया। तो इन दिस वे आल्सो यू आर इन्फेक्टेड बाय द जर्म्स। सो दीज हाउस फ्लाइज स्प्रेड द जर्म्स। ये हाउस फ्लाइज क्या है, जर्म्स को क्या कर रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं। कभी भी आप ध्यान देना, हम लोग खाते समय हमेशा फैन चला लेते हैं गर्मियों में, और देखो लोगों ने मैशेस भी लगा रखी हैं, जालियां लगा के रखते हैं घरों में, जिससे कि मक्खी अंदर ना आ जाए। ठीक है, सो क्योंकि ये हाउस फ्लाइज जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा जर्म्स स्प्रेड करती हैं। फ्रेश फूड पे आपने कभी भी देखा होगा, आपकी मम्मी लोग किचन में दे प्रिपेयर कुक फूड फॉर यू, फॉर द होल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। क्या कभी आपने देखा है कि घर के में जो भी खाने की चीज़ें होती हैं हमेशा कवर्ड रखी जाती हैं, हमेशा वो चीज़ें क्या होती हैं, कवर्ड होती हैं, जिससे कि अगर वो ओपनली आप रखोगे, तो मैंने क्या कहा, जब ये जर्म्स क्या है, एयर में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है, सॉइल में भी प्रेजेंट है, तो आप ओपनली रखोगे खाने की चीज़ें तो फिर भी वो जर्म से इन्फेक्टेड हो जाएंगी, उस पर हाउस फ्लाइज भी बैठ सकती है, कॉकरोच भी उसमें आ सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न
these visitors, जो अनवांटेड विजिटर्स हैं लाइक मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाइज, दे स्प्रेड दिस जर्म्स. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.